Friends, my name is Seema and I am teaching you a topic that is reproduction in organism. This topic is from the class 12th and chapter number 1. Now from starting the topic we will start a basic concept that is a lifespan. Lifespan is a period between birth to natural death. It can be vary from species to species. It cannot determine the shape and the size. Even if organism has the same size and same shape, lifespan can be vary. Example: crow and parrot. Crow have lifespan near about 15 years and parrot have lifespan near about 140 years. Now we are talking about unicellular organism. Unicellular organism do not have any natural death. Why it is considered unicellular organism do not have natural death? Because when we are talking about unicellular organism, it divided from one organism to two organism. So unicellular organism do not divide it into two parts. Organism is divided into two parts. So in unicellular organism there is no natural death. Now we are talking about main term that is reproduction. Firstly, we have to know about the definition of reproduction. Reproduction is the production of organism of the same kind of the organism. Production of same kind of organism. Example: human beings organism is baby human beings, elephant baby is calf elephant. Now why it is so? Organism produce same kind of organism. उनके same kind के organism के होते हैं due to DNA. जो DNA होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. जो DNA है उसकी वजह से ही जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम टाइप का ही रिप्रेजेंट करता है. जो उसके अंदर बेस पेयर्स होते हैं वो सेम टाइम के ही जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके बेबी इसलिए ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस होते हैं. नाउ नेक्स्ट टर्म इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज asexual and sexual reproduction. In asexual reproduction there is only one parent involved, and in sexual reproduction there are two parents involved. One parent and two parents. Asexual reproduction example is Hydra, Spirogyra, Cladomonas. In sexual reproduction mostly mammals are considered. Example: human beings, elephant, lion, tiger. Lots of example of the sexual reproduction. Now we are talking about the different type of asexual reproduction. Of asexual reproduction. First is fission, fragmentation, regeneration, spore formation, vegetative propagation. These all are the types of asexual reproduction. Now one by one we will discuss about that types. Firstly we will discuss about fission. Fission is already two types: binary fission and multiple fission.
In boundary fission, parent body is divided into two parts. एंड इन मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट बॉडी होती है वो एक पार्ट से बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एग्जाम्पल है इसका अमीबा एंड इट्स एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट ट्रांसवर्स, लेटरली एंड इन एनी शेप like this. We can consider it is an amoeba and it can be divided like this, in this way, in this way. It can be divided into any part, and but it divided into only two parts at a time. So binary means bi means two and fission मतलब division. मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब एक बॉडी से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है वो बाइनरी फिजन कर रहा है. और इसका एग्जांपल बेस्ट है अमीबा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल फिजन. व्हेन इन एन ऑर्गेनिज्म इट कंटेन लोड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट कंटेन सिस्ट अराउंड इट. सिस्ट कवरिंग होती है ऑर्गेनिज्म के बाहर. इन एडवर्स कंडीशन ये सिस्ट परसिस्ट करती है, हमेशा ये बनी रहती है. बट जैसे ही सिस्ट फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है और जो इतने ऑर्गेनिजम्स हैं सारे आउट हो जाते हैं. एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म ये डेवलप हो जाते हैं जहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं. एग्जांपल वाटर, लैंड. प्लाज्मोडियम मेनली ग्रो करता है कहाँ पर? वाटर के अंदर, लैंड, लेक के अंदर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट इज फ्रेगमेंटेशन. Fragmentation means when a body is divided into lots of small parts. एक बॉडी जब बहुत सारे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और वो बॉडी एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाए और ये न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में कंसीडर किए जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे. इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. इसका एग्जाम्पल है हमारा स्पायरोगायरा. Now we are talking about next term that is regeneration. In regeneration एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो सकता है, वो भी 2 to 3 पार्ट्स में. बट इसके अंदर क्या डिवाइड होते हैं? मेनली स्पेशलाइज्ड सेल. स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं तब उस बॉडी के अंदर रीजनरेशन होती है. एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के जिस भी पार्ट में कट लगता है वो कट दोबारा से आ जाता है. वो ऑर्गन क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइज्ड टिश्यू या स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एग्जांपल लिजर्ड. लिजर्ड की टेल अगर कट हो जाए तो वो लिजर्ड से क्या हो जाती है? लिजर्ड के पास टेल अगेन आ जाती है, लेकिन टेल से लिजर्ड दोबारा डेवलप नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि टेल के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन लिजर्ड के पास होते हैं जो कि टेल को डेवलप कर सके. This is a example of regeneration. or another example in the that is planaria. ये किसका एग्जाम्पल है? ये है नॉन वर्टिब्रेट्स का. ये लिजर्ड वर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल है. एंड फ्रेगमेंटेशन इज ओनली अकर इन नॉन वर्टिब्रेट्स, नॉन कोर्डेटा. यू कैन से नॉन कोर्डेटा मीन्स जिनके पास बैकबोन अवेलेबल नहीं होती, कोर्डेटा जिनके पास बैकबोन अवेलेबल होती है. प्लेनेरिया किस में एग्जाम्पल आएगा? नॉन कोर्डेटा में. जो भी रीजनरेशन एग्जाम्पल हैं उसमें दोनों ही हमारे आएंगे, नॉन कोर्डेटा एंड कोर्डेटा. इसमें से ये जो हमारी फ्रेगमेंटेशन है वो सिर्फ नॉन कोर्डेटा में थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. In spore formation, when a body is grow, small spores on it, it can be endogenously or exogenously. जब स्पोर्स बाहर ओपनली प्रोड्यूस होएंगे वो कौन सा आएगा? एक्सोजीनियसली. अगर स्पोर्स किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो स्पोर्स जब एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे तो उसको बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन एंडोजीनियसली. ये इसमें ये किसका एग्जांपल है? पेनिसिलिन.
पेनिसिलियम। और इसके अंदर मशरूम। पेनिसिलियम के ऊपर जो ये छोटे छोटे हैं इन पोर्स को क्या बोलते हैं? कोनिडिया। और ये जिस पोर्शन पे ग्रो है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर पे कोनिडिया ग्रो करते हैं एक्सोजीनियसली, इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन। मशरूम एंडोजीनियसली ग्रो करता है स्पोर फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट अकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो भी पार्ट विदाउट रिप्रोडक्शन अवेलेबल होते हैं, विदाउट रिप्रोड जैसे जो भी होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जिस जो रिप्रोडक्टिव होते हैं, एग्जाम्पल स्टेमन एंड कार्पल। ओवरी इसी का पार्ट होता है कार्पल का। जो ये दोनों होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। इसके अलावा जिस भी प्लांट से अगर प्लांट ग्रो करता है उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। नाउ टेक एग्जांपल आर बर्ड्स। बर्ड से कौन ग्रो करता है? पोटैटो। एंड नेक्स्ट स्टेम से रोज हो गए, रोज प्लांट। रूट से स्वीट पोटैटो। राइजोम से ग्रो करते हैं जिंजर। देयर आर लोट्स ऑफ एग्जाम्पल, ऑक्सैलिस, वाटर हाइसिंथ। ये सारे जो भी पार्ट्स हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कंसीडर होंगे क्योंकि ये सिंगल पार्ट से ही डेवलप हो जाते हैं। Now we are talking about the next topic, that is sexual reproduction in organism. Before starting the sexual reproduction, we are thinking about what steps are necessary for the sexual reproduction. Firstly, making gametes. उसके बाद gametes ट्रांसफ़र होंगे. After that, it will be fertilization में हेल्प करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जाइगोट, एम्ब्रियो। ये पूरा प्रोसेस चलेगा किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब हम 3 इवेंट्स हैं जो मेन वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन। Second is fertilization. And last one is post fertilization. प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स आएंगे आगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जिसको हम बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। And second is gamete transfer. प्री फर्टिलाइजेशन के 2 इवेंट्स पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के हम बाद में। जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्टली गैमेटोजेनेसिस। एज यू कंसीडर फ्रॉम इट्स नेम, गैमेटो मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन्स स्टार्ट। जैसे ही गैमीट बनने स्टार्ट हो जाएंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप के प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल oogenesis, ये प्रोसेस फीमेल के अंदर होता है। और नेक्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मेल के अंदर होता है प्रोसेस।
oogenesis means formation of egg or ova in an female body is called oogenesis, and spermatogenesis formation of sperm in a male body is called spermatogenesis in human beings. After that there are the another two terms, that is homogenesis and heterogenesis. In homogenesis, when two gametes are alike, बिल्कुल एक जैसे हो, बिल्कुल सिमिलर हो स्ट्रक्चर के अंदर, उसको बोलेंगे हम होमोजेनेसिस. इन हेटेरोजेनेसिस, व्हेन स्ट्रक्चर आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी मेल एंड फीमेल. ठीक है, इसके अंदर होमोजेनेसिस का एग्जांपल आ जाएगा आपका क्लैडोमोनास. क्लैडोमोनास का जो मेल और फीमेल है, बिल्कुल उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मॉर्फोलॉजिकली, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है उनका. और जो हेटेरोजेनेसिस में होता है उसमें मेल और फीमेल का ईजिली मॉर्फोलॉजिकली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर फीमेल के अंदर जो ओवा होता है, ओवा का साइज़ बड़ा होता है, वो स्टेशनरी होता है और वो एज ए एग शेप में होता है. और जो मेल का स्पर्म है वो कैसे होता है, उसके पास टेल है, उसके पास अपना स्ट्रक्चर है जो उसको हेल्प करता है किसके अंदर, मोटिलिटी करने में, मोटाइल बनाने में. इसको बोलते हैं हम इसलिए होमो मतलब सेम एंड हेटेरो मतलब डिफरेंट. डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी होते हैं, ये बिल्कुल सेम होते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में की डेफिनेशन क्या होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. जब फ्यूज़न होएगी मेल फीमेल गैमीट से, उसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. ये किसके अंदर कंसीडर करेंगे हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, जाइगोट. अब इसमें गैमीट्स कैसे होंगे, जो गैमीट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या कौन सी फॉर्म में होते हैं, हैप्लॉइड. डू यू नो द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड? इफ नो देन आई विल डिस्कस विद यू. हैप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो हमारे हैप्लॉइड होएगा. और जो डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड के अंदर क्या होते हैं, अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन गैमीट्स. ये कौन से फॉर्म से प्रेजेंट होते हैं, मियोसिस की फॉर्म से प्रेजेंट होते हैं. बाकी जितने भी प्रोसेस होते हैं सेल डिवीज़न के ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसमें कौन सा प्रोसेस चलेगा, माइटोसिस. इसमें मियोसिस चलेगा. डिप्लॉइड सेल मतलब अगर इसके अंदर 23 पेयर्स प्रेजेंट हैं अगर बॉडी के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम डिप्लॉइड्स. ठीक है, हैप्लॉइड में बोलेंगे 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं अगर. पेयर मीन्स 46 क्रोमोसोम्स. ओके, ये डिप्लॉइड हो गया, ये हमारे हैप्लॉइड हो गए. हैप्लॉइड किस में प्रेजेंट होते हैं, गैमीट्स में प्रेजेंट होते हैं. और हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड बन के वो जाइगोट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो गैमीट्स. ये मेल प्लस फीमेल के गैमीट्स अगर दोनों फॉर्म होते हैं तब जो नीचे स्ट्रक्चर बनता है वो जाइगोट होता है. और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट कम्प्लीटली अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. इसमें हमने पढ़ना था, पहले हमने पढ़ा था जैसे जाइगोट. जाइगोट है, जाइगोट को हम क्या करते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. एक बॉडी के अंदर 2 सेल्स हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड. डिप्लॉइड के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है, उसके बाद जो ये सेल है वो अपने सेल की ग्रोथ करेगा. आफ्टर दैट सेल, इसके अंदर जो हमारा सेल डीएनए है, डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट. डीएनए रेप्लिकेट होगा. उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीज़न. सेल ग्रोथ होगी, डीएनए रेप्लिकेट होगा, उसके बाद सेल डिवीज़न होगी. उसके बाद जो हमारा सेल है, सिंगल सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और 2 डिप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे. इसके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है, हमारा माइटोसिस.
माइटोसिस से एक बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। नाउ अगेन 2 पार्ट्स जो है वो 4 में, 4, 8 से ऐसे ही जो है जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता जाएगा। इनकी अलग अलग नेमिंग है जो हम 3rd चैप्टर के अंदर कम्प्लीटली कंसिडर करेंगे। और जाइगोट से वो किस में कन्वर्ट हो गया हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब वो एम्ब्रियो बन चुके हैं। एम्ब्रियो मीन्स बेबी एंड जेनेसिस मतलब स्टार्ट, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये प्रोसेस होता कहाँ पर है? स्टार्टिंग होता है इसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसके बाद ये प्रोसेस हमारा कहाँ चले जाता है? यूट्रस में। यूट्रस में फुली डेवलपमेंट होती है बेबी की, उसके बाद ये कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है बेबी की। और वहाँ पर जाकर कौन सा सबसे पहले हार्मोन रिलीज होएगा? ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन हेल्प करेगा यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शन करने में। आफ्टर दैट गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर फॉर्मेशन एक कंप्लीट बेबी आ जाएगा। These are the all steps is considered in the male or you can say human beings body inside. ये हमने तीनों स्टेप्स पढ़ लिए। Now we are talking about in plants, how in plants sexual reproduction occur. टॉकिंग अबाउट प्लांट। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं, इसके हम पढ़ेंगे। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टेमन, एक कार्पल। स्टेमल मेल पार्ट होता है और जो कार्पल है वो फीमेल पार्ट होता है। जब स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं कार्पल के पास, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। एंड जब कार्पल के पास पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है। सबसे ऊपर जो प्रोसेस स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, जो लॉन्ग चेन होते हैं उसको स्टाइल, और लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं ओवरी। सबसे पहले जो पोलन ग्रेन्स है वो कार्पल के स्टिग्मा वाले पोर्शन पे जाएंगे, वहाँ पर पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगी, स्टाइल के थ्रू वो अंदर जाएंगे। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है एक स्मॉल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम ओव्यूल। जैसे ही पोलन ग्रेन ओवरी के थ्रू ओव्यूल के अंदर कांटेक्ट में आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट। जाइगोट बनते ही वो एक एज ए हमें फ्रूट मिल जाएगा। अब फ्रूट की डेवलपमेंट कैसे होती है? जो ओवरी है वो ओवरी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप में प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्रूट्स के अंदर। ओके, नाउ बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जिसको हम बोलते हैं पेटल्स, सेपल्स, ये सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं। ये सारे अपने आप ही गिर जाएंगे प्लांट में से और पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी हमारे जो फ्रूट की है उसके अंदर। कैसे डेवलपमेंट होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। नाउ वी आर stopping that topic and we will discuss in the second lecture, that is sexual reproduction in flowering plant, that is 2nd chapter. Thank you for listening.